Story that we are getting for you is from the national capital. A day after 5 persons were arrested for allegedly attacking police personnel during a Delhi High Court ordered anti-encroachment drive around the Faiz-e-Ilahi Mosque in the Turkman Gate area, the Delhi police arrested 6 more persons. People have and the police have put multiple WhatsApp groups under the scanner for allegedly circulating misleading audio messages. They said, adding that they are planning to send a notice to Samajwadi Party leader Mohibullah Nadwi, who was allegedly present on the spot, to join the investigation. The police said that the misinformation campaign, amplified through WhatsApp voice notes and social media posts, triggered stone pelting during a court-ordered anti-encroachment drive near the mosque. On your screens is a photo of Salman. He is one of the main accused in this misinformation campaign that led to the stone pelting incident in Delhi's Turkman Gate. Now let's take a look at another alleged accused. Her name is Ayman Rizvi and she is an activist. She has over 32,000 followers on Instagram and over 50,000 more on other platforms. However, she has posted videos of the mosque stating that it is being demolished, effectively spreading misinformation. Another accused in the case is Zuhan Qureshi. This young guy has posted 2 videos, one after another, of the demolition that took place near the Faiz-e-Ilahi Mosque in Delhi's Turkman Gate area, actively spreading false information. Remember, the demolition was conducted against illegally encroached area where a wedding hall was constructed and was done under the Delhi High Court's permission. Let me go across now to Rumi Mishra to access the social media accounts of some of these people. So Rumi, take us through how misinformation campaign was actually started in this entire case. Yes, Shivani, now I have on my screen right here the Instagram account of Ayman Rizvi activist. She has so far posted 1816 posts. She says that she is a public figure. She has 32.2 thousand followers and she's following merely 3 people right there. We also have access to her YouTube account, but we'll go back to that later. Right here, what I see now is an Instagram post that she has put on air right here. It says she's from Team Save Insaniyat. What's written right here in Hindi, and I'll try to read it out for our viewers. It says, Turkman Gate, Delhi ki Masjid Dargah Faiz-e-Ilahi par chala bulldozer. So she's saying that there's bulldozer action on the mosque, which is of course misinformation that's being propagated right here by this activist. Her caption right here also says the same thing. She has put crying emojis expressing her grief over the fact. However, we all know that the fact is entirely wrong. There are 4,184 likes on these posts and a lot of comments right here. People have expressed their anger towards what we all know is something that has not actually even happened. Now let's try to listen in to what she has shared. Right here, let's take a look at another post. Now she's sharing her explanation on what happened and on her own post that she made on the Purani Delhi Turkman Gate mosque issue. Now let's listen in to what her statement says. This one post right here has 1,266 likes. Again, people have shared their sympathies with her. People have sympathized to whatever she's saying. But let's listen in to what she has said. तुर्कमान गेट जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और सालों साल से वो वहाँ पर है और वहीं पर एक महमूद इलाही मस्जिद भी थी जो नामालूम कहाँ चली गई, ज़मीन निगल गया, आसमान खा गया। वक्फ बोर्ड के पेपरों में वो मस्जिद है लेकिन वहाँ पर वो मस्जिद नहीं है। उसी मस्जिद के पास अहाते में जो एक रास्ता था, जो एंग्लो अरबिक स्कूल जो बच्चे तुर्कमान गेट से जाया करते थे उसी रास्ते से जाते थे। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनता है जिस मंदिर को हनुमान वाटिका का नाम दिया जाता है। फिर लगातार इंक्रोचमेंट होता है
और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को एक्वायर करके इंक्रोच करके वो मंदिर बड़ा 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 और बड़ा हो जाता है। कुछ दिन पहले देखा कि आपने एक जानवर सा So now you see that she is obviously spewing hate. She's saying that and these masjids are being broken down, they're being demolished, and temples are being consecrated on the same land over there. Now let's move on to another guy. We have Zuhan Qureshi, 786. He has 737 followers. He's following 108 people. He has put out 10 posts on Instagram, and he has said that he is a digital creator. Now let's take a look at two of his top posts right here. This one has 94.9 thousand views. So over 94,000, almost 95,000 people have seen this video right here. 1,462 comments have also been made on the same. Let's take a look at what this shows. It's a video of the stone pelting incident. So Zuhan was apparently present at the site. He was a part of the mob that not just pelted stones but has thrown sticks, boulders, and what not they could get their hands upon at the authorities as they just followed the orders of the Delhi High Court. His caption right here says, फैज़-ए-इलाही मस्जिद को कुछ नहीं होना चाहिए, जो हुआ उसके आगे जो शादी हॉल था और जो डिस्पेंसरी थी उसको हटाया गया है, और पुलिस की ये जो भी तरीका है, पुलिस ने जो भी किया है उसकी गलती को हम ये माफ़ नहीं करेंगे. So he has said that we are not going to forgive the police officials, and whatever has happened, this is the action. This is a reaction to the wedding hall that has been demolished. Now let's take a look at another post that is made. It's the same thing again. This post right here has a relatively less number of likes. It has 285 likes, but it again proves that this guy Zuhan Qureshi was present at the site of the demolition and the stone pelting incident. Over to you, Shivani. Social media posts how misinformation was actually being spread in this case. Let me also go across to my colleague Javed Hussain, who's joining us on the broadcast. Javed, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, हमें सोशल मीडिया के द्वारा जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी इसके बारे में ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, बट सामने जब ये आता है इसको कैसे रोका जाएगा? लोगों के पास फ़ोन रहता है, वो रिकॉर्ड करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त है दिल्ली पुलिस की जो अभी अहम जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बताया गया है कि जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद है वहाँ पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है कि डेमोलेशन चल रहा था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो था उसको लेकर, इस वजह से मना किया गया. किसी को कोई मनाही नहीं की गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग हैं वो नमाज के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि कम लोगों को यहाँ पे आने के लिए बोला गया है, लेकिन किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है. और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलाका पूरी तरीके से अभी बंद है. यहाँ पर रिहायशी इलाका, किसी को आने की परमिशन अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पे नमाज, जैसे जुमे की नमाज है, तो जुमे की नमाज के लिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि हालात को देखकर और जो सिचुएशन था उसको देखकर ये सारी चीज़ें जो है वो कदम उठाई गई है. इस वक्त हालात नॉर्मल है. 12 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, और आपको बता दूं कि कई इन्फ्लुएंसर जो है उनको लेकर तलाश की जा रही है. और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं शिवानी, की दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि अब तक जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है. दुकानें जल्द खुलेगी. हालात को देखते हुए कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए बोला गया है. साथ ही सलमान जो यूट्यूबर, उसको लेके लिए भी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसके रोल को भी अभी देखा जाएगा, और उसको भी जांच के लिए जो है वो अभी तक बुलाया है, और वो अभी ज्वाइन नहीं किया है. ये माना जा रहा है कि जल्द वो दिल्ली पुलिस की जांच को जो है वो ज्वाइन कर सकता है. साथ ही जो सपा सांसद हैं उनको भी अभी नोटिस नहीं दिया गया, उनके वीडियो को भी जो है रूल आउट किया जा रहा है. मतलब अभी किसी को जो है वो पूरी तरीके से जो सस्पेक्ट या आरोपी तौर पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन सबके रोल को देखा जा रहा है, सबके वीडियो को, कि सबके वीडियो के कंटेंट कैसे हैं. जो महिला है, जामिया की रहने वाली इन्फ्लुएंसर है, उसके भी रोल को दिल्ली पुलिस देखेगी. हालांकि उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जामिया भी गई थी. तो इसमें जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि
जो लोग थे उसमें ज़्यादातर लोगों को जो है उनको नोटिस दिया गया है। जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं, जो सस्पेक्ट के तौर पर जिनकी पहचान हुई है, उनको जो है पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन जो समन दिया गया है, नोटिस दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। सपा सांसद को भी लेकर जिस तरह से वीडियो आया था किसी मस्जिद के पास का, उनके भी रोल को देखा जा रहा है और उसके बाद रोल आउट होने के बाद ही फिर दिल्ली पुलिस आगे देखेगी कि किस तरीके से टेक्निकली तरीके से उनको जो है वहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। अब इस इलाके का जो है ये पैमाइश भी की जा रही है। यहाँ पर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बाहर का जो ये इलाका है, यहाँ पर हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है बाउंड्री की तैयारी की जा रही है, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर जो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, खाली करा लिया गया है। और मस्जिद का जो इलाका है, मस्जिद का जो पीछे मेन गेट है, वो इस तरफ से गेट है जो पीछे मेरे वीजे लगातार राजू जो है वो दिखा रहे हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर पैमाइश हो रही है किस चीज़ का, दीवार को लेकर, ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर यहाँ पर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन जो एक्शन हुआ है, तो ये पैमाइश किस चीज़ को लेकर हो रही है? जो ये अभी जो प्रेमाइज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए ओनली कर रहे हो। मेजरमेंट इसलिए कि यहाँ पे पूरी फेंसिंग करनी है, तो उस फेंसिंग के लिए हमें भी एस्टिमेट बनाना होता है। जो एक्शन लिया गया उसको पूरी तरह से कवर करने के लिए फेंसिंग। एग्जैक्टली। तो क्या अभी और कितने देर तक काम चलेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया? जो पीछे मोस्ट प्रॉब्ली हम साइट आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो भी मलबा वगैरह तो उसी का है, फेंसिंग उसके बाद गो अहेड होगी। थैंक यू। तो देखिए ये पूरी तरीके से एमसीडी और दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ पर ये पूरी तरीके से फेंसिंग के लिए यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से तार को लगाया जाएगा, उसकी पैमाइश की जा रही है। और यहाँ से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको खाली कराया गया था, शिवानी देखिए जो पीछे मस्जिद के इधर का जो इलाका है जो पूरी तरीके से खाली कराया गया था, उसको लेकर ये पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको दिल्ली पुलिस ने खाली कराया, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के पर ये पूरा जो है ये कार्रवाई की गई। और अब इसमें जो है यहाँ पर जो फर्दर अपडेट है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालात नॉर्मल सिचुएशन के बेस पर जो है वहाँ इसके बाद मार्केट या जो इलाका है उसको खोल दिया जाएगा या धीरे धीरे ढील दी जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त का सिचुएशन यही है। इस वक्त 2:15 का समय हो रहा है और अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस बीएसएफ के जो जवान हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ जो है उसके साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इस पूरे रास्ते को जो है बैरिकेड किया गया है। जो आसफ अली रोड है इसको भी अभी नहीं खोला गया। ये रास्ता सीधा दरियागंज की तरफ जाता है। मेरे पीछे जो रास्ता है शिवानी, ये रास्ता बिल्कुल आईटीओ और कनाट प्लेस की तरफ जो सीधा स्टेट रास्ता जाता है। पीछे जो रास्ता है ये पहाड़गंज का रास्ता है, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ का रास्ता है, ये हज मंजिल है। आमतौर पर इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट होता है। लेकिन अभी देखिए इस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल है और तमाम जो लोग हैं उन्हें अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जो एसेंशियल सर्विस है यानी कि जो आसपास का जो इलाका जो बंद किया गया है वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विस है उनको खोला रखा गया है। बाकी पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको लेकर देखिए यहाँ पर पैमाइश की जा रही है और पूरी तरीके से पैमाइश के बाद यहाँ पर जो है इसको फेंसिंग की जाएगी। और हालात की बात करें तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है। 12 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी शिवानी। जी धन्यवाद जावेद आपका।